Good morning, students. Today in this video I'm going to explain the topic which is heme catabolism. So let's start. In this, these are the contents or topics we are going to discuss. First is introduction of heme. Next, structure of heme. Then heme degradation or catabolism. Significance of heme degradation. Hyperbilirubinemia. And next is jaundice. Last one is jaundice. So starting with introduction, heme, the small molecule component of hemoglobin critical for oxygen transport, must undergo a complex process of metabolism or degradation. Heme is a cyclic planar molecule like a wheel with an iron atom at the center and asymmetric arrangement of side chain around rim. The part of heme that serves as rim is porphyrin. Porphyrins are formed by linking a pyrrole ring with methylene bridge to create ring compounds that bind iron in coordinate bonds at their center. Heme is a component of hemoglobin, myoglobin, and cytochrome. So, as you all know, heme is the component of hemoglobin. Hemoglobin दो protein part और non protein part से बनता है, which is heme and globin. Globin is the protein part and heme is the non protein part. Further, heme जो है वो उसके भी two components हैं. First is उसमें एक फेरस है, दैट इज आयरन एटम है, उसके साथ साथ पायरॉल रिंग्स हैं जो कि 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं और वो अटैच है मिथिलिन ब्रिज के साथ. अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं नेक्स्ट. सो साइक्लिक प्लानर मॉलिक्यूल हमने इसको बोला है जो कि व्हील लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जिसके बीच में जो सेंटर ऑफ द व्हील है वहाँ पे एटम है किसका, आयरन का. फिर उससे कनेक्टेड है क्या, पायरॉल रिंग्स, 4 pyrrole rings उससे connected हैं. Let's go on the structure. Here you can see that here is one Fe, that is iron atom, और इधर 1 2 3 and 4 pyrrole ring attached हैं इससे. So chelate is being formed here. अभी इधर you can see 8 modification like numbering is here 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So these are the eight side chains which are part of protoporphyrins. Porphyrins are formed by linking a pyrrole ring with methylene bridge to create ring compounds. So क्या है porphyrin? Pyrrole rings which are attached with methylene, CH3, methylene bridge. Compound that bind iron in coordinate bonds with their center. So this is the whole structure of heme, not hemoglobin. Heme we are talking about. So pyrrole ring जो कि एक 5 membered ring है. Heme is a porphyrin ring that is tetrapyrrole. टेट्रा वर्ड्स यहाँ 4 शो कर रहा है. टेट्रा पायरॉल, 4 पायरॉल रिंग्स हैं विद चिलेटेड आयरन, दैट इज Fe एटम. हेयर जो Fe है दैट इज ferrous iron, not ferric. Protoporphyrins contain 8 modified side chain जो अभी हमने डिस्कस किया. Now, heme is the component of hemoglobin, myoglobin and cytochrome. So this is all about heme and structure of heme. Now coming on heme degradation. Most heme that is degraded comes from the hemoglobin of the old erythrocytes which are phagocytosed by macrophage. As you all know that a normal lifespan of RBC, नॉर्मल RBC जो है वो कितने दिन के लिए लाइव रहता है, दैट इज़ 120 days और 3 months. तो इतने टाइम के लिए रहता है, उसके बाद वो ओल्ड हो जाता है और स्प्लीन में जाके डिग्रेड होता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम हेयर. ओल्ड एरिथ्रोसाइट्स जो स्प्लीन में जाते हैं डिग्रेड होते हैं, तो वहाँ पे वो डिग्रेड कैसे हो रहे हैं, फैगोसाइटोसिस हो रहा है मैक्रोफेजेस, बाय मैक्रोफेजेस. नाउ अब हम जो हीम का कैटाबॉलिज्म है उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. सो हेयर यू कैन सी देयर आर 5 स्टेप्स जो अलग अलग लोकेशंस पे हो रहा है. फर्स्ट स्टेप इज बीइंग इन मैक्रोफेज. सेकेंड is transfer of bilirubin into liver,
एंड थर्ड इज इंटेस्टाइन। तो 3 अलग अलग लोकेशंस पे ये पूरा कैटाबॉलिज्म हो रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेप 1, here oxidases convert free heme to bilirubin in macrophages located in the spleen. spleen में macrophage जो है वहाँ पर हीम, ये हीम आप यहाँ देख रहे हैं जो फर्स्ट नंबर 1 यहाँ पे शो कर रहा है। नंबर 1 कन्वर्जन क्या हो रहा है, स्टेप 1 में क्या होता है, हीम कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन में। इस दौरान उसमें से जो उसका फेरस एटम था, आयरन एटम था, वो रिलीज हो गया और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड CO एज यू कैन सी हेयर, ये एक्सक्लूड होंगे, ये निकलेंगे इसमें से। सो RBC था जो ओल्ड RBC आया, उसमें से ग्लोबिन पार्ट अलग हो गए जो कि प्रोटीन है, जो कि आगे अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म वो वाले पाथवे पे जाएगा। हेयर हीम, हम हीम का फर्दर कैटाबॉलिज्म देख रहे हैं। सो इन फर्स्ट स्टेप हीम इज कन्वर्टेड इनटू बिलिरुबिन जो कि अनकॉन्जुगेटेड है, और इस दौरान एक आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड का आयन या मॉलिक्यूल निकला है यहाँ से। इन स्टेप 2 वी कैन सी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, that is indirect bilirubin, combines with albumin in the blood and is taken up in hepatocytes by binding protein. Unconjugated bilirubin is not filtered in urine because it is lipid soluble and bound to albumin. Here in second step you can see bilirubin जो कि unconjugated है, वो नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड के थ्रू स्प्लीन से लिवर में। सो यू हैव टू लर्न और रिमेंबर दिस दैट बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बाइंड करता है प्रोटीन के साथ, वो एज इट इज़ नहीं आ सकता है ब्लड के थ्रू लिवर में, वो बाइंड करता है प्रोटीन के साथ, एल्ब्यूमिन के साथ, और ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ से, मैक्रोफेज से लिवर में। नाउ यू कैन सी लिवर में बिलिरुबिन इज प्रेजेंट इन लिवर। नाउ अभी इधर 2 ग्लूकोरोनिक एसिड कंज्यूम करता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कंज्यूम कर रहा है ग्लूकोरोनिक एसिड। इस रिएक्शन में एक एंजाइम यूज़ होता है दैट इज़ UGT। ये थर्ड रिएक्शन अब हम स्टार्ट करते हैं। इन थर्ड स्टेप वी कैन सी in hepatocytes unconjugated bilirubin is conjugated by reacting with 2 molecules of glucuronic acid, a reaction that is catalyzed by uridine diphosphate glucuronyl transferase UGT. So third part में you can see हेयर जहाँ थर्ड मेंशन किया हुआ है बिलिरुबिन जो कि अनकॉन्जुगेटेड है, ये कन्वर्ट हो रहा है बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड में विच इज़ कॉन्जुगेटेड। ठीक है, इस समय पे ये 2 ग्लूकुरोनिक एसिड कंज्यूम कर रहा है और अनकॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट बन रहा है। ये वाला रिएक्शन जो थर्ड स्टेप है वो लिवर में ही होता है। अब थर्ड स्टेप में जो बिलिरुबिन जो प्रोडक्ट बना दैट इज़ बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड, ये सिक्रीट होगा बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में। फाइन, नाउ bilirubin diglucuronide or conjugated bilirubin is water soluble. Now it is water soluble, it can further go or transfer via bile. Conjugated bilirubin does not have access to blood unless there is inflammation in liver, example hepatitis, or obstruction to bile flow, that is gallstone in common bile. अभी जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना है लिवर में, ये एज इट इज़ ब्लड में नहीं जा सकता, ये ब्लड के साथ एक्सेस इसका नहीं हो सकता, ब्लड के साथ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। सो ये secreted in bile. Conjugate bilirubin is actively secreted into bile ducts and stored in gallbladder for eventual release into duodenum. So अब लिवर में वो या तो स्टोर होगा, जब ज़रूरत होगी तो बाइल सॉल्ट्स जो बाइल पिगमेंट्स लिवर गॉल ब्लैडर सिक्रीट करता है उसके साथ वो इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। सो सिक्रेटेड इन बाइल यहाँ पे इसलिए सिक्रेटेड इन बाइल मेंशन किया गया है। वाई? बिकॉज कॉन्जुगेट बिलिरुबिन दैट इज बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड कैन नॉट एक्सेस इन ब्लड, वो ब्लड में नहीं जा सकता, ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, वो गॉल ब्लैडर में जाता है और वहाँ से बाइल सॉल्ट्स या बाइल उसके फॉर्म में सिक्रीट होता है इंटेस्टाइन में। नाउ स्टेप 4, intestinal bacteria hydrolyze conjugated bilirubin and reduce free bilirubin to colorless urobilinogen. Now in fourth
step you can see here, it is taking place in intestine. ये intestine में हो रहा है. So जब intestine में gall bladder से वहाँ से bile salt या bile pigments secrete हुए हैं, तो उस केस में intestinal bacteria उसको डाइजेस्ट करेगा और वी कैन से हाइड्रोलाइज करेगा, ताकि जो बिलीरुबिन है, कॉन्जुगेट बिलीरुबिन है, वो कन्वर्ट हो जाए यूरोबिलिनोजेन में. हेयर यू कैन सी यूरोबिलिनोजेन. हेयर further urobilinogen is oxidized and forming urobilin. Oxidation of urobilinogen yields urobilin. जब यूरोबिलिनोजेन का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? यूरोबिलिन. यूरोबिलिन वो कंपोनेंट है जो फीसिस को, स्टूल को या फीसिस को कलर देता है. येलो कलर जो स्टूल का होता है वो इसकी वजह से होता है, और साथ साथ यूरिन का भी जो कलर होता है वो यूरोबिलिन जो कंपोनेंट है, पिगमेंट है, उसकी वजह से होता है. सो कैसे बना वो? यूरोबिलिनोजेन के ऑक्सीडेशन से. कहाँ हो रहा है ये प्रोसेस? इंटेस्टाइन में. सो इंटेस्टाइन में जब बाइल सॉल्ट सिक्रीट होके आए तो बैक्टीरिया ने हाइड्रोलाइज किया एंड फर्दर बिलीरुबिन जो कि कॉन्जुगेट था उसको यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट किया. यूरोबिलिनोजेन का ऑक्सीडेशन होगा तो वो यूरोबिलिन बनेगा जो कि कलर देता है स्टूल को. दैट इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ योर बॉडी. फर्दर एंटेरो हेपेटो सर्कुलेशन के थ्रू जो यूरोबिलिनोजेन है वो 90% लिवर में और 10% किडनीज में ट्रांसफ़र होता है. किडनी में उसका ऑक्सीडेशन होता है, सो दैट्स वाई यूरोबिलिन प्रेजेंट होता है यूरिन में और यूरिन को कलर देता है लाइट येलो, पेल येलो. दिस इज़ ऑल अबाउट कैटाबॉलिज्म और डिग्रेडेशन ऑफ हीम. फिफ्थ स्टेप एक बार दोबारा से, अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ यूरोबिलिनोजेन इज रीअब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड. दैट इज enterohepatic circulation in the terminal ileum and is recycled to liver and kidneys. ये रिसाइकिल हो जाता है और इसका 20% रीअब्जॉर्ब हो जाता है वापस ब्लड में. इन यूरिन यूरोबिलिनोजेन इज oxidized into urobilin, which gives urine its yellow color. The color of stool and urine is caused by urobilin. So जो yellow color, जो pale yellow color stool का और urine का होता है, that is due to pigment urobilin. Urobilin के कारण वो color आता है. So these are the 5 steps by which we can explain heme degradation. This is the overall. You can see all 5 components, all 5 steps here. अब इसको हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं here. So first you can see here हीमोग्लोबिन से ग्लोबिन पार्ट अलग हुआ, हीम हो गया. ये पार्ट जो हो रहा है, ये पार्ट पूरा it is taking place in spleen itself. So heme is oxidized and converted into biliverdin and आगे bilirubin. अभी bilirubin which is water insoluble, तो ये ब्लड के थ्रू लिवर में जाता है. जब ये लिवर में जाता है तो ये अनकॉन्जुगेट फॉर्म में है. अभी हमने पिछला स्लाइड में देखा अनकॉन्जुगेटेड है. अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेट बनाना है. क्यों? फर्दर उसके एब्जॉर्प्शन के लिए या एक्सक्रीट करने के लिए बॉडी से बाहर. सो बिलीरुबिन इज कन्वर्टेड इनटू बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड जो कि वाटर सॉल्युबल है. यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं ग्लूकुरोनिक एसिड के और यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड. एंजाइम यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है दैट इज यूरोबिलिन. Here you can see the enzyme is uridine diphosphate glucuronyl transferase, UGT. Now bilirubin diglucuronide जो यहाँ conjugate है वो ट्रांसफ़र होगा यहाँ से कहाँ? इंटेस्टाइन में. इंटेस्टाइन में ये एज इट इज़ नहीं जा सकता क्योंकि ये ब्लड के वाटर सॉल्युबल है, ब्लड के साथ नहीं जाएगा. ये इंटेस्टाइन में जाएगा बाइल डक्ट के ज़रिए. ठीक है, गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट के ज़रिए ये जाएगा इंटेस्टाइन में. इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो उसको हाइड्रोलाइज करेंगे हेयर. सो अब यूरोबिलिनोजेन कन्वर्ट होगा यूरोबिलिन में जो कि स्टूल को उसका कलर देगा. फर्दर जो रीएब्जॉर्ब होता है, बाकी जो 20% है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा लिवर में और फर्दर किडनी में जाएगा. किडनी में क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन होता है तो जो भी पार्ट है यूरोबिलिन का वो एक्सक्रीट होगा
यूरिन के थ्रू, और पेल कलर जो होता है यूरिन का वो इसी कंपोनेंट के वजह से होता है. This is the full explanation of heme degradation. Now coming on next, significance of heme degradation. Free heme concentration greater than 1 micrometer can be toxic because it catalyzes the production of reactive oxygen species. सो इधर हम देख सकते हैं फ्री हीम कंसनट्रेशन अगर उसकी 1 माइक्रोमोलर से ज़्यादा है तो वो टॉक्सिक होता है. क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ इस रिएक्शन को जो कि बहुत हार्मफुल कंपोनेंट हार्मफुल स्पीशी होती हैं जो कि उसको कैटलाइज करता है उस रिएक्शन को. टू कोप अप विद दिस प्रॉब्लम इसको अवॉइड करने के लिए हीम डिग्रेडेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हीम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को प्रमोट करता है, उस रिएक्शंस को प्रमोट करता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ फॉर्म करता है. प्रोडक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज CO, that is carbon monoxide, acts as a cellular messenger and functions in vasodilation. Other metabolites of heme also have additional important function and are involved in various critical cellular events. सो हमने देखा था फर्स्ट स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हो रहा था हीम के डिग्रेडेशन में, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड सेल्यूलर मैसेंजर का काम करता है और वेसोडाइलेशन फंक्शन को करवाने में हेल्प करता है. और जो मेटाबोलाइट्स हैं उनके भी अलग अलग फंक्शंस हैं, सो इसीलिए हीम का डिग्रेडेशन ज़रूरी है. हीम डिग्रेडेशन इज़ बिलीव्ड टू बी एन इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड रिस्पॉन्स ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि इम्बैलेंस बिटवीन एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्री रेडिकल. जो अभी हमने ऊपर पढ़ा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं बॉडी में, सो इसके इम्बैलेंस में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. तो इस केस में भी हीम डिग्रेडेशन बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है. इन हायर प्लांट्स हीम इज़ ब्रोकन down to the phycobiliprotein phytochrome which is involved in coordinating light response. प्लांट्स में भी इसका रिस्पॉन्स प्लांट में भी हम देख सकते हैं कि जो हीम है वो ब्रेक होके क्या बनता है, फाइकोबिलिप्रोटीन बनता है फाइटोक्रोम में विच इज़ इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेटिंग लाइट रिस्पॉन्सेज. In algae, it is metabolized to the light harvesting pigment phycocyanin and phycoerythrin. एल्गी में भी हीम के मेटाबॉलिज्म से ये दो पिगमेंट्स बनते हैं विच आर इसेंशियल फॉर एल्गी. दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस. कमिंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाइपर बिलीरुबिनेमिया. सो एज द वर्ड इंडिकेट, हाइपर मीन्स एलिवेटेड या बढ़ा हुआ या ज़्यादा. बिलीरुबिन इज़ दैट पिगमेंट एंड इन ब्लड, तो ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल हाइपर रहना या एलिवेटेड रहना. So starting with first point, bilirubin is a natural byproduct produced when RBCs break down. The adult liver converts unconjugated bilirubin into a conjugated form that be excreted. So जैसा कि हमने अभी डिग्रेडेशन में पढ़ा है, लिवर अनकॉन्जुगेट को कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करता है जो कि बॉडी से एक्सक्रीट हो सकता है बाहर स्टूल में और यूरिन में. सो दिस बिलीरुबिन, जब इस बिलीरुबिन की मात्रा ब्लड में ज़्यादा होती है तब जो कंडीशन होती है और उसको हम हाइपर बिलीरुबिनेमिया कहते हैं. सो हाइपर बिलीरुबिनेमिया इज़ एन एलिवेटेड लेवल ऑफ पिगमेंट बिलीरुबिन इन द ब्लड. सो ब्लड में दिस पिगमेंट बिलीरुबिन पिगमेंट की मात्रा या लेवल एलिवेटेड रहना, बढ़ा हुआ रहना. इट अकर्स व्हेन सीरम बिलीरुबिन इज मोर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. इस कंसनट्रेशन से या इस टाइम पे जब इस कंसनट्रेशन से ज़्यादा होता है बिलीरुबिन ब्लड में, उस कंडीशन को हम जॉन्डिस भी, जो कंडीशन होती है उसको जॉन्डिस भी कहा जाता है. फर्दर अभी हम देखते हैं. इट रिजल्ट फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन और डिफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ बिलीरुबिन. सो ये जो कंसनट्रेशन है वो 2 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा क्यों होगी? या तो बिलीरुबिन का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है बिलीरुबिन यानी हीम ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, या फिर जो डिस्पोजेबल है, जो उसका डिस्पोज होना है यानी बॉडी से एक्सक्रीट होना है, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है. इस कारण से बिलीरुबिन की जो मात्रा है, बिलीरुबिन का जो लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज़ करता है. Hyperbilirubinemia is very common, affecting approximately 60% of
term newborns and 80% of premature babies develop jaundice. So ये जो कंडीशन है हाइपरबिलिरुबिनेमिया, ये जनरली जो न्यू नेट्स होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, उनमें देखा जाता है, जो प्री मेच्योर बेबीज़ होते हैं उनमें देखा जाता है. Elevated bilirubin is evident by yellow discoloration of baby's eye, mucosa and skin. So symptoms या conditions या किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो क्या होता है, येलो डिस्कलरेशन ऑफ बेबीज़ आई, आइज़ का येलो होना, म्यूकोसा का रेड येलो होना, स्किन में कलर येलो कलर आना, यूजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम हेड एंड मूविंग डाउनवर्ड्स. और ये कलर जो है यूजुअली आइज़ में, फेस पे ऐसे आते थे, पूरी बॉडी में दिखने लगता है. दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपरबिलिरुबिनेमिया. नेक्स्ट इज़ जॉन्डिस. अब जॉन्डिस वो कंडीशन है जब येलो कलर बॉडी में आ चुका है, कलरेशन येलो हो रहा है, उस कंडीशन को हम जॉन्डिस कहते हैं. सो हाइपरबिलिरुबिनेमिया और जॉन्डिस को हम कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं. कैसे कि जब बिलिरुबिन की लेवल या हाई होता है ब्लड में, तब जॉन्डिस होता है. So as you can see here, jaundice is a condition in which the skin, whites of eye and mucous membrane turn yellow because of high level of bilirubin. High level of bilirubin in blood है तो उस condition को हम बोलेंगे hyperbilirubinemia. और इसकी वजह से जो symptoms दिख रहे हैं, जो हो रहा है, that is called jaundice. Jaundice has many causes including hepatitis, gallstones and tumors. तो ये causes हो सकते हैं jaundice के. Jaundice के type, first is hemolytic, next is parenchymatous jaundice and third one is obstructive jaundice. Hemolytic jaundice means a condition due to excessive hemolysis of blood. Parenchymatous jaundice means a condition due to liver cell damage. Obstructive jaundice means a condition due to presence of tumors in biliary tract. तो इन सब के कारण बिलिरुबिन ब्लड में आ जाता है, जिससे डिस्कलरेशन होता है, येलो कलर हमें आइज़ में, स्किन में दिखने लगता है. सो दिस इज़ अबाउट जॉन्डिस. थैंक यू सो मच. आई होप दिस इज़ यूजफुल. थैंक यू.